Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous video, we have done the topic that is the sound, the range that human hear, and the human ear that cannot hear. That is known as audible frequency or the inaudible frequency, or the ultrasonic or the infrasonic range. Okay, now in this video we will do the human ear. The human ear is a sensitive organ of the human body. आप सबको पता है human ear बहुत ज़्यादा sensitive organ होता है human body का. It can क्या काम करता है human ear? That is detecting, transmitting and transducing sound. Means sound को detect करेगा, उसे convert करेगा and then ये बताएगा किसने बोला है, क्या बोला है. Okay, so the first we will do the structure of the ear. Now, what is the structure of ear? That it contains three parts: external ear, middle ear and internal ear. The external ear, see the diagram first. In this diagram you can see that we have the outer ear, जिसको हमने external ear बोला है. In this external ear we have the pinna, which is known as auricle, and then we have the eardrum and the ear canal. Okay, now see, the external ear contains auricle, that is pinna, external auditory meters and the tympanic membrane. Now, the first one is the auricle. The auricle is also known as the pinna. It is a thin plate जो आपका outer ear होता है, जिसको आप fold करते हो, up hold करते हो, जहाँ पे आप earring पहनते हो. That is your external ear or the pinna. तो it is a thin plate of elastic cartilage covered by a layer of skin. इस पर एक skin की layer है. यहाँ पे एक funnel like curves होते हैं, आपको दिख रहा है आपके ear में funnel like curves होते हैं that collects the sound waves. Basic function of auricle और pinna is to collect the sound waves. आप जो भी साउंड सुन रहे हैं उनको सबको कलेक्ट करेगा एंड देन आपके मिडल ईयर में ट्रांसफर कर देगा. ओके, दिस लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ एडिपोज एंड फाइब्रस टिश्यू. यहाँ पे कुछ फैट कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं एंड ब्लड कैपिलरीज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो बेसिकली कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बेसिकली ईयर कैनाल बोलते हैं. ओके, it is a slightly curved canal supported by a bone in its interior part and cartilage in the exterior part. Now see, आपको ear canal दिख रहा है, outer में bone होगी, अंदर soft होगा. Okay, the meters of the canal. meters क्या है? बेसिकली canal जो कि ear canal है, जहाँ पे आपके वेक्स ग्लैंड्स होते हैं. आपने देखा होगा आपके ईयर में अंदर की साइड आप फिंगर रन करते हैं तो आपको वहाँ पे वेक्स दिखता है, येलो कलर का फ्लूइड दिखता है. दैट इज़ योर वेक्स ग्लैंड्स. तो वहाँ पे वेक्स सिक्रीट होता है, जिसको आप ईयर वेस्ट ऑर्गन, ईयर वेस्ट बोलते हो. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या ईयर ड्रम बोलते हैं. सो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द मिडल ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर. ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ये बेसिकली आपके मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करता है. और यहाँ पे जो भी साउंड आती है वो एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज हो जाती है एंड वो साउंड वेव आके फर्दर मूव ऑन की जाती है. ओके, सो इसलिए बोलते हैं कान के पास धीरे बोलना चाहिए, बिकॉज अगर आप तेज बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी एंड आपके कान को सुनाई नहीं देगा, इसलिए कान ईयर खराब हो सकते हैं आपके. नाउ सी, pinna, that is the auricle, then the ear canal, meters or the canal, then the eardrum, that is the tympanic membrane. Now we will move to the middle ear, which contains three bones, that is hammer, envelope and stirrup, which is being indicated in different names over here. And it also contains eustachian tube, which goes to the throat basically. Now see the middle ear. Middle ear contains tympanic cavity, eustachian tube, ear ossicles, which contains further three bones. Now tympanic cavity क्या है? Cavity is hollow space. तो इस hollow space में क्या fill होगा? Air fill होगा. It is a narrow air filled cavity separated from the external ear by the tympanic membrane. एक्सटर्नल एयर फिल्ड कैविटी है जिसको हम सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल ईयर से. कैसे? बाय अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनर ईयर बाय अ बॉनी वॉल. बॉनी वॉल क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बोन्स बन रही है, आगे फर्दर 3 बोन्स डेवलप की जा रही हैं. ओके, द टिम्पैनिक कैविटी हैज़ एन ऑडिटरी ट्यूब. वहाँ पे एक ऑडिटरी ट्यूब है जो सुनने के काम आती है, नोन एज स्टेशन ट्यूब, जिसको हम स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, जो इंटीरियर वॉल में होता है. नाउ स्टेशन ट्यूब होती क्या है एक्चुअल में? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है. मीन्स
अंदर और बाहर के एयर प्रेशर को इक्वलाइज करेगी ताकि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर सके। ज़्यादा होगा तो कान में दर्द होता है, कम होता है तो कान में दर्द होता है। सो दैट वाज ऑल बिकॉज कि अगर अंदर बाहर का एयर प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा तो आपको ईयर पेन होता है। रीज़न यही होता है। क्लियर है? इट कनेक्ट्स द टिम्पैनिक कैविटी विद द नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स क्यों? क्योंकि ये आपके ईयर को नोज से कनेक्ट करता है। सो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपको कोल्ड होता है तो ईयर की बैक साइड पे पेन होता है, ईयर में पेन होता है तो नेक के रीजन में जो आपका थ्रोट होता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे मिर्चें लगती हैं। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस ऑफ ENT, दैट इज ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव द ईयर ऑसिकल विच इज अ पार्ट of the middle ear which contains further three bones. These are responsible for transmitting sound waves from the eardrum to the middle ear. There are three ear ossicles, means तीन bones है, malleus, incus and stapes. Class, malleus is known as hammer, incus is known as stapes, incus is known as anvil and the stapes is known as stirrup. Okay, scientific name is malleus, incus and stapes, but diagram में आपको hammer, anvil and stirrup दिखाया गया। So malleus is a hammer shaped part, you can see over here, hammer shape है आपकी। Then hammer shaped part that is attached to the tympanic membrane through the handle and incus through the head. incus का head मतलब anvil का head से connect है और tympanic membrane के hammer की shape से connected है। It is the largest ear bone, ये basically सबसे बड़ी ear bone होती है आपकी। नेक्स्ट वी हैव द इनकस। इनकस क्या करेगा? एनविल शेप्ड है, ईयर ऑसिकल को कनेक्ट करता है विद द स्टेप्स, मतलब तीनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है? एनविल का है या इनकस का है। देन वी हैव द स्टेप्स, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम स्टिरअप भी बोलते हैं और स्टेप्स भी बोलते हैं। ये सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, जो आपकी पूरी बोन स्ट्रक्चर को आगे कनेक्ट करने के बाद मिडल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करती है। सो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो साउंड वेव आई एम्पलीफाई हुई वो मिडल ईयर में भी आके एम्पलीफाई होती है। तो नेक्स्ट वन वी हैव द इनर ईयर। इनर ईयर में फर्दर दो पार्ट्स हैं, द वन इज अ कोकिला एंड द सेकेंड वन इज अ वन विच कंटेन्स योर बेसिकली लिक्विड्स, और जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके हियरिंग में हेल्प करते हैं। इट कंटेन्स टू पार्ट्स यानी बोनी लेब्रिनिथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ। Bony labyrinth is comprised of vestibule, three semicircular canals and spirally coiled coccyla. See, spirally coiled coccyla दिख रहा है आपको? That is a part of inner ear. Now, it is filled with a liquid that is known as perilymph. Now, next we have a membranous labyrinth. ये membranous labyrinth क्या होता है? Surrounds bony labyrinth के पास एक membrane बनी होती है जिसको हमने membranous labyrinth बोला है। यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके बैलेंसिंग एंड हियरिंग में बैलेंस बनाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट जिसको हम बेसिकली ऑडिटरी नर्व के थ्रू बोलेंगे डायग्राम में, बट यहाँ पे वो मेम्ब्रेनस लेब्रिन्थ है। द मेम्ब्रेनस लेब्रिन्थ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ एंड कंप्राइजेस थ्री सेमीसर्कुलर डक्ट्स, कॉक्युलर डक्ट एंड द सेक्युलर एंड यूट्रिकल। सी, ये सारे जो नर्व्स हैं आके कनेक्ट हो रही हैं, ये आपके हियरिंग में हेल्प करते हैं। जो भी सिग्नल्स ईयर को मिले वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू आगे जाएंगे, ब्रेन उसे रीड करेगा एंड फर्दर आपको सुनने में हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप द ह्यूमन ईयर इज क्लियर टू यू। इन दिस वीडियो वी हैव डन ओनली ह्यूमन ईयर एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।